حوصلہ شکنی کا اثر تعارف انسانی زندگی میں حوصلہ ایک ایسا جزو ہے جو فرد کو منزل کی طرف بڑھاتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے اور کوششوں کو جاری رکھنے کی توانائی بخشتا ہے۔ جب یہی حوصلہ کسی وجہ سے ٹوٹتا ہے تو اسے ہم عام زبان میں حوصلہ شکنی کہتے ہیں۔ حوصلہ شکنی نہ صرف وقتی مایوسی ہوتی ہے بلکہ اس کے گہرے نفسیاتی، معاشرتی، تعلیمی اور معاشی اثرات بھی ہوتے ہیں جو فرد اور معاشرے دونوں پر طویل المدت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم حوصلہ شکنی کی وجوہات، اس کے مختلف پہلوؤں پر پڑنے والے اثرات، انفرادی اور اجتماعی سطح پر نتائج اور ان سے نمٹنے کے عملی طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ حوصلہ شکنی کیا ہے؟ حوصلہ شکنی وہ نفسیاتی کیفیت ہے جس میں فرد کی اندرونی امنگ، توانائی اور مثبت توقعات کم ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کیفیت بیرونی عوامل مثلاً رد شکست، تنقید، عدم تعاون، اندرونی عوامل خود اعتمادی کی کمی، ماضی کے تجربات، خوف ناکامی کے باعث پیدا ہو سکتی ہے۔ حوصلہ شکنی وقتی ہو سکتی ہے، مثلاً کسی امتحان میں ناکامی کے بعد کچھ دنوں کا مطمع نظر کم ہونا، یا مستقل اور گہری حالت میں تبدیل ہو سکتی ہے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں منفی تبدیلیاں لاتی ہے۔ حوصلہ شکنی کی بنیادی وجوہات: ایک، ناکامی اور رد عمل۔ جب کوئی فرد کسی کوشش میں ناکامی یا مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے تو اس کا حوصلہ ٹوٹ سکتا ہے۔ بار بار رد نظر انداز ہونا بھی اسی کیفیت کو جنم دیتا ہے۔ دوست، منفی تنقید اور عدم تعاون، گھر، اسکول، دفتر میں بلاوجہ بیجا تنقید، مناسب رہنمائی یا تعاون کے فقدان سے فرد کی خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے۔ تین، توقعات کا عدم توازن، اگر توقعات حقیقت سے بہت زیادہ ہوں یا دوسروں کی توقعات ناقابل حصول ہوں تو ناکامی کے بعد مایوسی بڑھتی ہے۔ چار، موازنہ، کمپیرسن، دوسروں سے مسلسل موازنہ کرنا، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں ایک عام سبب ہے جو فرد کو کمتر محسوس کراتا ہے۔ پانچ، نفسیاتی مسائل، ڈپریشن، انزائٹی یا دیگر ذہنی صحت کے مسائل بھی حوصلہ شکنی کی جڑ بن سکتے ہیں۔ 6، ماحولیاتی و سماجی عوامل، غربت، عدم تحفظ، ناانصافی، تب سے بھی افراد میں امید کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ نفسیاتی اثرات، حوصلہ شکنی کا سب سے فوری اثر فرد کی نفسیاتی حالت پر پڑتا ہے۔ یہ شواہد میں ظاہر ہوتا ہے: کم خود اعتمادی، منفی سوچوں کا بڑھ جانا، امید کی کمی اور مستقبل کے بارے میں غم و غمزہ۔ جب فرد اپنے آپ کو بارہا ناکام محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتا ہے۔ شک بعض اوقات خود حقیقی زندگی میں خود کو پورا کر کے منفی نتائج لا سکتا ہے، یعنی فرد اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ کوشش ہی ترک کر دیتا ہے، چنانچہ ناکامی حقیقت بن جاتی ہے۔ حوصلہ شکنی اور موٹیویشن، تحریک، حوصلہ شکنی کی سب سے نمایاں علامت تحریک میں کمی ہے۔ جو فرد پہلے محنت اور شوق کے ساتھ کام کرتا تھا وہ اب کم دلچسپی، سستی اور بے خود بین محسوس کرتا ہے۔ یہ اثر خصوصاً طویل مدت کے پروجیکٹس، تعلیمی مطالعہ، کریئر کے اہداف میں نظر آتا ہے۔ تحریک کی کمی نتیجتاً پیداواری صلاحیت میں کمی اور ہدف حاصل کرنے میں ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ تعلیمی اثرات، طالب علموں میں حوصلہ شکنی کا اثر تعلیمی کارکردگی پر بہت واضح ہوتا ہے۔ کم حوصلہ رکھنے والے طالب علم سبق میں توجہ کم کرتے ہیں، امتحانات کی تیاری سے کتراتے ہیں، اسکول یا کالج کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے ہچکچاتے اور اکثر غیر حاضر رہتے ہیں یا کورس چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب عوامل طویل مدت میں تعلیمی نتائج کو متاثر کرتے ہیں اور مستقبل کے مواقع محدود کر دیتے ہیں۔ پیشہ ورانہ و معاشی اثرات، دفتر یا کاروبار میں حوصلہ شکنی عہدے کی کارکردگی اور ٹیم کے ماحول پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ ماوس، غیر متوجہ حوصلہ شکن ملازم کم محنت کرتا ہے اور وقت پر کام مکمل نہیں کرتا، تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کم ہوتا ہے، ٹیم ورک اور کمیونیکیشن میں خرابی آتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی یا ادارہ مجموعی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ کاروبار میں مالکان اور مینیجرز کے مسلسل منفی رویے، غیر مناسب انعامات اور ترقی کے مواقع نہ دینے سے حوصلہ شکنی بڑھتی ہے اور ملازمین کی تبدیلی، ٹرن اوور کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تنظیمی لاگت اور عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ معاشرت و رشتوں پر اثرات، حوصلہ شکنی کا اثر فرد کے خاندان اور دوستوں کے ساتھ تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ جب کوئی فرد خود کو کمتر محسوس کرتا ہے تو وہ اکثر سماجی میل جول سے کتراتا ہے، گفتگو میں کم حصہ لیتا ہے یا غصہ اور چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ برے رویے رشتوں میں دوری پیدا کرتے ہیں اور آخرکار سماجی تنہائی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح خاندان کے افراد بھی متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر جب والدین حوصلہ شکن ہوں تو ان کے بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
जिससे एक नस्ल दर नस्ल मनफी सोच का चक्कर बन सकता है। सेहत पर असरात हासिल शुदा नफसियाती दबाव जिस्मानी सेहत पर भी असर अंदाज होता है। हौसला शिकनी से नींद में खलल, भूख में तब्दीलियाँ, मुस्तकिल थकन और बाज़ औक़ात दर्द अबा प्रोडक्टिव अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। तवील अरसे तक शदीद मायूसी, डिप्रेशन दीगर नफसियाती अमराज तक जा सकती है जो तिब्बी मुदाखलत की ज़रूरत पैदा करती हैं। तालीम याफ्ता फ़र्क और बरादरी पर असरात। किसी मुआशरे में जब बड़ी तादाद में अफराद मायूस और हौसला शिकन हों तो उसके नताइज मुआशरती तरक्की के लिहाज से नापायदार होते आउ नौजवान नस्ल का काम सियासी मुहिमात में कम शमूलियत, कम कारोबारी सोच और इख्तिरात में कमी मुल्क की माशी तरक्की को सुस्त कर देती है। इसके साथ साथ समाजी मसाइल जैसे जुर्म, नशे की लत इंतहा पसंदी की तरफ रुझान में इजाफा हो सकता है। जब लोग अपने मुस्तकबिल से नाउमीद हों, हौसला शिकनी के तवील अलमुद्दत नताइज। अगर हौसला शिकनी को बरवक्त नहीं रोका गया तो इसके तवील अलमुद्दत नताइज संगीन हो सकते हैं। नाक़िस तालीमी और पेशा वराना कारकर्दगी, मयूब रिश्ते, ज़हनी सेहत के मसाइल और माशी खसारा। अफराद अपनी सलाहियतों को बरोए कार नहीं लाते और इस तरह मजमूई तौर पर इंसानी सरमाया ज़ाय होता है। नजता फ़र्द खुद को मुआशरे के काबिल कदर रुकन महसूस नहीं करता और उसका मावारन ज़िंदगी मुतासिर होता है। मिसाली वाक़यात और हकीकी ज़िंदगी की मिसालें फ़र्ज़ करें। एक नौजवान तालिब इल्म जिसे बचपन से पढ़ाई में फ़रागत और मरूफियाँ मिली हों मगर कॉलेज में पहली बार इसे सख्त मुकाबले और नाकामी का सामना करना पड़ता है। अगर माहौल में हिमायत ना हो और उस्ताद वालिदैन इसकी नाकामी को मजाक गैर संजीदा अंदाज में लें तो वो नौजवान खुद से बदज़न होकर पढ़ाई छोड़ सकता है या कम मेहनत करने लग सकता है। इसी तरह एक मेहनती मुलाजिम जो बरसों वफादारी से काम कर रहा हो मगर तरक्की ना मिलने और मुसलसल तनकीद का शिकार हो, वो कमज़ोर महसूस करके कंपनी छोड़ दे महज रोज़गार के लिए आधी दिल से काम करने लगे। दोनों हालात फ़र्द और इदारे दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। हौसला शिकनी से निमटने के तरीक़े। इनफरादी सतह। एक, अपनी सोच का तज्ज़िया करें। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, मनफी ख़यालात को शनाख्त करें और उन्हें हकीकत पसंदाना सोच से तब्दील करें। मिसाल के तौर पर मैं हर चीज़ में नाकाम हूँ को बदल कर कहीं मैंने कुछ जगह गलतियाँ की हैं मगर मैं सीख सकती हूँ। 2, छोटे काबिल हुसूल अहदाफ मुकर्रर करें। बड़े हदफ को छोटे हिस्सों में नतना हौसला बढ़ाता है। हर मुकम्मल करदा मरहला एक मुस्बत इशारा है जो तहरीक बहाल करता है। 3, कामयाबियों का रिकॉर्ड रखें। अपनी छोटी बड़ी कामयाबियों को लिख कर रखना खुद एतमादी बढ़ाता है। 4, हिमायत तलाश करें। दोस्त, खानदान किसी मुशीर से बात करें, अक्सर इज़हार गम से बोझ हल्का होता है। 5, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। वर्जिश, मुनासिब नींद और मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़हनी क़ुव्वत को बढ़ाते हैं। 6, महारतों की तरक्की। नई महारतों मौजूदा सलाहियतों की बेहतरी पर काम करना फ़र्द को ताकतवर महसूस करवाता है। 7, पेशा वराना मदद। अगर हौसला शिकनी, डिप्रेशन एंज़ाइटी की शक्ल इख्तियार कर गई हो तो माहिर नफ्सियात माहिर शऊर से राब्ता ज़रूरी है। इदारती और माशरती इक़दामात। इज्तिमाई सतह। 1, तालीमी इदारों में मुआवनत। स्कूलों और कॉलेजों में तलबा के लिए काउंसलिंग सर्विसेज। मनफी मुकाबले की बजाय हदफी रहनुमाई और तलबा की मुस्बत शनाख्त को फ़रोग़ देना चाहिए। 2, वर्क प्लस कल्चर। कंपनियों को मुस्बत फीडबैक, शफाफ तरक्की के मौक़े और काम के दबाव को मुनज़्ज़म करने की पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए। 3, मीडिया और सोशल मीडिया का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर हकीकत पसंदाना मवाद और मुस्बत कहानियाँ शेयर करके लोगों में उम्मीद बहाल की जा सकती है। 4, समाजी हिफाजत के नेटवर्क। कम आमदनी वाले ख़ानदानों और महरूम तबक़ात के लिए सरकारी गैर सरकारी तंजीमें रोज़गार, तालीमी वज़ाइफ और मुशावरत फराहम करके हौसला शिकनी कम कर सकती हैं। 5, कम्युनिटी प्रोग्राम। मकामी सतह पर वर्कशॉप्स, रहनुमाई और तरबियती प्रोग्राम नौजवानों को मौक़े फराहम करते हैं और उम्मीद जगाते वालिदैन, असातिज़ा और रहनुमाओं का किरदार। वालिदैन और असातिज़ा वो लोग हैं जो अक्सर हौसला अफजाई या हौसला शिकनी का बुनियादी सबब बन सकते। मुस्बत तासुर देने वाले वालिदैन बच्चे की कोशिशों की तारीफ करते हैं, नाकामी को सीखने का मौका समझाते हैं और हकीकी तवक्कुआत कायम करते हैं। इसी तरह असातिज़ा जब तलबा की छोटी कामयाबियों को तस्लीम करते और हौसला अफजा फीडबैक देते हैं तो तलबा में मुस्तकिल मिजाजी और खुद एतमादी पैदा होती ही। रहनुमा को चाहिए कि वो माहौल ऐसा बनाएं जहां गलती को भी सीखने का हिस्सा समझा जाए, न कि नाकामी का निशान। हौसला अफजाई के नफ्सियाती उसूल। हौसला अफजाई, मोटिवेशन और उम्मीद, होप।
के पीछे नफ्सियाती नजरियात हैं। सीटीवी और लर्न हेल्पलेसनेस का तसौर जब लोग सीख लेते हैं कि उनके अमाल का नतीजा तब्दील हो सकता है तो वो कोशिश जारी रखते हैं। इसके बरक्स जब किसी को बार बार ये पैगाम मिलता है कि कोशिश बेमानी है तो वो लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार होकर कोशिश तर्क कर देता है। इस इल्म की रोशनी में कोशिशों की तस्लीम और छोटे मगर वाज़ेह इनामात देना बहुत मुअस्सिर साबित होता है। खुलासा और नतीजा हौसला शिकनी एक आम मगर संगीन मसला है जिसके असरात फर्दी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर वाज़ेह होते हैं। ये न सिर्फ नफ्सियाती तकलीफ का सबब बनती है बल्कि तालीमी कारकर्दगी, पेशा वराना तरक्की, रिश्तों की पायदारी और मजमूई माशी तरक्की को भी मुतासिर करती है। खुशकिस्मती से हौसला शिकनी का मुकाबला मुमकिन है। अफराद कोशिशों, तालीमी व पेशा वराना इदारों की मुआवनत और समाजी सतह पर पॉलिसी इक़दामात के ज़रिए। अहम बात यह है कि हम नाकामी को हतमी शिकस्त न समझें बल्कि इसे सीखने और बेहतर होने का मौका बना। वालिदैन, असातिज़ा, रहनुमाओं और पॉलिसी साजों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो ऐसे माहौल पैदा करें जहां हर फर्द की कोशिश को कदर दी जाए, मुनासिब रहनुमाई मिले और नाकामी के बाद दोबारा उठ खड़े होने के लिए वसाइल दस्तयाब हों। आखिरी कलिमात में अगर हम बतौर मुआशरा ये अज़्म कर ला कि हम हौसला अफजाई को अपना कल्चर बनाएंगे ना कि हौसला शिकनी को, तो न सिर्फ एक फर्द बल्कि पूरी नस्लें बेहतरी की तरफ गामजन होंगी। हर छोटी तारीफ, हर मौका और हर मुस्बत अक़दाम किसी के अंदर उम्मीद की किरण जला सकता है। हमें चाहिए कि हम खुद भी दूसरों के लिए वो रोशनी बने जो एक बार खुद हमें चाहिए। हौसला शिकनी का असर तारुफ। इंसानी ज़िंदगी में हौसला अफजाई और हौसला शिकनी दोनों क़ुव्वतें पाई जाती हैं। जहाँ हौसला अफजाई किसी फ़र्द को बुलंद करती है, हौसला शिकनी इसके अज़्म, खुद एतमादी और कारकर्दगी पर गहरा असर डाल सकती है। ये मज़मून हौसला शिकनी का असर के उन्वान से मुख्तलिफ जहतों, नफ्सियाती, तालीमी, पेशा वराना, समाजी और जिस्मानी पर रोशनी डालता है और उन मसाइल के मुमकिना हल भी पेश करता है। इस मज़मून का मकसद कारी को न सिर्फ हौसला शिकनी की नौयत और उसके मनफी असरात से आगाह करना है बल्कि इन हिकमत अमलियों का भी तज़किरा करना है जिनके ज़रिए फ़र्द और मुआशरा इस जहरीले अमल को कम कर सकते। हौसला शिकनी क्या है? हौसला शिकनी से मुराद वो अमल हालात हैं जो किसी फ़र्द की हौसला अफजाई इरादे या कोशिश को कम कर ये बराह रास्त किसी के मनफी रद्द अमल, तनकीद, तरदीद, नाइंसाफ़ी की सूरत में हो सकती है। बिलवास्ता जैसे मुसलसल नाकामी, वसाइल की कमी या गैर हौसला अफजा माहौल। हौसला शिकनी वक्ती भी हो सकती है और मुस्तकिल भी। वक्ती हौसला शिकनी फ़र्द को वक्ती तौर पर पीछे धकेल देती है, जबकि तवील अरसे की हौसला शिकनी इसकी शख्सियत, काबिलियत और ज़िंदगी के हदफ पर मुस्तकिल मनफी असर डाल सकती है। हौसला शिकनी के असबाब एक ज़ाती अवामिल, नाकाफ़ी खुद एतमादी, खौफ, नाकामी, माजी की मनफी तजर्बात, ज़हनी दबाव और कम्प्लेक्स जैसी नफ्सियाती वजूहात अफराद को आसानी से हौसला शिकन बना सकती हैं। 2. माहौलियाती अवामिल, घरेलू मसाइल, समाजी दबाव, गैर मुआविन तालीमी या पेशा वराना माहौल, हरासानी या नाइंसाफ़ी असबाब में शामिल हैं। 3. माशी और साख्ती अवामिल, बेरोज़गारी, महदूद वसाइल, इम्तियाज़, निज़ामी दबाव, सिस्टमिक बैरियर्स अफराद की कोशिशों को नाकाम बनाकर उन्हें मायूस कर देते हैं। 4. ताल्लुकात में नाहमवारी, रिश्तों में शफाफियत का फुकदान, ताउन की कमी या मुसलसल तनकीद भी मुअस्सिर हौसला शिकन अवामिल। नफ्सात असरात, हौसला शिकनी के फौरी और देरपा नफ्सियाती असरात होते। खुद एतमादी में कमी, जब किसी फर्द को बार बार मनफी फीडबैक या नाकामी का सामना हो तो वो अपनी सलाहियतों पर शुबा करने लगता है या से नई चीज़ें आजमाने का हौसला कम हो जाता है। एंजाइटी और डिप्रेशन, मुसलसल हौसला शिकनी ज़हनी दबाव, इज़्तिराब, एंजाइटी और बाज़ सूरतों में डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है। फर्द की मुस्बत सोच घट जाती है और वो खुद को तन्हाई में महसूस करता। हमोतूशना में कमी, जो लोग एक बार मुतहर्रिक होते हैं वो बार बार के हौसला शिकन तजर्बात के बाद मेहनत करने की लगन खो देते हैं। निजता कारकर्दगी मुतासिर होती है। नफस मुंतकली और खुद को मौरिद इल्ज़ाम ठहराना, हौसला शिकनी से मुतासरा अफराद अक्सर खुद को मलामत करते हैं और अपनी खामियों को बड़ा बनाकर देखते हैं, जो नफ्सियाती तौर पर सेहत के लिए नुकसानदेह तान और पेशा वराना असरात तालीमी कारकर्दगी में कमी। तलबा जो मुसलसल मनफी तबसरों नाक़िस सहूलतों का सामना करते
हैं वो अपनी तालीमी कारकर्दगी खो देते हैं। हौसला शिकनी उन्हें कोशिश कम करने और तालीम में दिलचस्पी दिखाने पर मजबूर करती है। पेशा वराना तरक्की में रुकावट। मुलाजमत कारोबार में हौसला शिकनी से नए आइडियाज सामने आने में रुकावट आती है और मुलाजमीन कारफरमा तरक्की के मौके ज़ाया कर देते। आवादत और टीम वर्क पर असर। जब टीम के अरकान कायदीन को हौसला शिकन माहौल दरपेश हो तो फैसला साजी सुस्त, तख्लीकी कम और बाहमी एतमाद मुतासिर होता है। समाजी और ताल्लुकाती असरात रिश्तों में कशीदगी। हौसला शिकनी अफराद के दरमियान दूरी और नाराज़गी पैदा करती है जिससे रिश्ते बिगड़ सकते और मुआशरत शिरकत में कमी। जो लोग मायूस होते हैं वो मुआशरती सरगर्मियों में कम शामिल होते हैं जिससे कमी छोटिये में एक मनफी चक्कर जन्म लेता है। कम शिरकत, कम ताउन और नतीजे में मजीद बेहौसलगी, नस्ली जिन्स, तबकाती इम्तियाज। मुआशरती सतह पर मौजूद इम्तियाजी सलूक खास ग्रोहों को रोकता और हौसला शिकन बनाता है जो वसी पैमाने पर अदम मुसावात और महरूमी का बाइस बनता है। जिस्मानी सेहत पर असरात। हौसला शिकनी का असर सिर्फ जहन तक महदूद नहीं रहता, जिस्मानी सेहत भी मुतासिर होती है। मुस्तकिल ज़हनी दबाव से नींद में खलल, भूख में तब्दीलियाँ, दायमी थकन और क़ुत मुदाफ़ियत में कमी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तवील मुद्दती तौर पर ये अमराज़ क़ल्ब, हाज़मे के मसाइल और दीगर जिस्मानी पेचीदगियों का सबब बन सकता है। माशी और समाजी नताइज। जब अफराद गिरोह हौसला शिकन हों तो माशी पैदावार और तख्लीकी सलाहियत मुतासिर होती ही। नौजवान, ख़वातीन दीगर महरूम तबके जब हौसला शिकन माहौल का शिकार होते हैं तो मुल्क की तरक्की के इम्कानात कम हो जाते। आवाज़ के अलावा समाजी बेचैनी, जुर्म और इंतहा पसंदी के खतरात भी बढ़ सकते हैं जब लोग बेरोजगारी और महरूमी का शिकार हों। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें। मुख्तसर, एक तालीमी दुनिया। एक बासलाहियत तालिब इल्म जिसे बार बार असातिज़ा की जानिब से नाइंसाफ़ी तौहीन का सामना होता है। वक्त के साथ अपनी काबिलियत खोने लगता है और आला तालीम करियर के मौके ज़ाय हो सकते हैं। 2. दफ्तरी माहौल। एक तख्लीकी मुलाजिम जिसके आइडियाज़ को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है वो जल्द ही कम दिलचस्पी दिखाने लगता है और बिलाखिर वो कंपनी छोड़ देता है या महज वक्त गुजारने वाला बन जाता है। 3. ख़ानदानी ताल्लुकात। घरेलू सतह पर बाप वालिदा की सख्त तनकीद बच्चों में खुद एतमादी की कमी पैदा कर देती है जिसका असर उनके तालीमी और समाजी रवैयों पर तवील अरसे तक रहता ही। हौसला शिकनी के खिलाफ हिकमत अमली। फर्दी सतह पर एक खुद आगाही और खुद एहतिसाबी। अपनी कमजोरियों और गलतियों को कबूल करना और उनसे सीखना। हर नाकामी को सबक समझना और खुद को मुनज़्ज़म अंदाज में बेहतर बनाने की कोशिश करना। 2. छोटे और वाज़े अहदाफ मुकर्रर करना। इंतहाई बड़े अहदाफ कभी कभार हौसला शिकन महसूस होते हैं। छोटे काबिले पैमाइश मकासद करें ताकि कामयाबी के छोटे लम्हात मोटिवेशन बहाल करें। 3. मुस्बत खुद कलामी। पॉजिटिव मनफी सोचों का मुकाबला मुस्बत जुमलों और याद दहानियों से करना। मसलन मैं ये कर सकती हूँ। 4. सपोर्ट नेटवर्क बनाना। अच्छे दोस्तों, ख़ानदान मुशीरों से बात करना जो हौसला अफजा फीडबैक दें। 5. माहिरीन की मदद लेना। जब हौसला शिकनी नफ्सियाती मसाइल में तब्दील हो तो प्रोफेशनल थेरापी या काउंसलिंग मुफीद साबित होती है। तालीमी और इदारती सतह पर एक हिमायती निसाब और पॉलिसियाँ। तालीमी इदारों को ऐसे माहौल बनाने चाहिए जहां तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की जाए, मनफी रवैयों को रोका जाए और असातिज़ा को तरबियत दी जाए। फीडबैक का मुस्बत तरीका। तनकीद को तमीरी अंदाज में पेश करना चाहिए ताकि वो फ़र्द को बेहतर बनाने में मदद दे, मनफी और तौहीन आमेज़ अंदाज से नहीं। 3. मौक़े की मसावात। इदारों को कोशिश करनी चाहिए कि हर फ़र्द को मसावी मौक़े मिलें ताकि निज़ामी हौसला शिकनी ख़त्म हो। 4. मेंटरशिप प्रोग्राम्स। रहनुमाई देने वाले तजर्बाकार अफराद नए कमज़ोर अराकीन को सपोर्ट फराहम कर सकते हैं जिससे इन हौसला बहाल होता ही। मुआशरत और पॉलिसी सतह पर एक समाजी शऊर बढ़ाना। मीडिया, स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर्स के जरिए हौसला अफजाई की अहमियत और हौसला शिकनी के नुकसान के बारे में आगाही मुहिम चलाई जाए। 2. कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात और पॉलिसियाँ। हरासानी, इम्तियाज़ और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ मौसर क़वानीन और उनका नफाज लोगों को महफूज महसूस करवाएगा। 3. मौक़े की तौसी। हुकूमतें और तंजीमें उन नमूनों को फ़रोग़ दें जो महरूम तबकों को तालीम, तरबियत और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करें। अमली मशवरे। रोज़मर्रा के मराहिल सुबह का मामूल बनाएं।
صبح ایک مختصر مثبت ایفرمیشن ہدف کا جائزہ اور روزانہ کے چھوٹے اہداف طے کریں۔ ناکامی کو دوبارہ فریم کریں۔ ناکامی کو خلل کے طور پر نہیں بلکہ سیکھنے کا موقع کے طور پر دیکھیں۔ اپنے کامیابیوں کا ریکارڈ رکھیں۔ چھوٹی کامیابیاں بھی صفر اہم ہیں، انہیں لکھ کر دیکھیں۔ جب آپ مایوس محسوس کریں وقفہ لیں اور خود کی دیکھ بھال کریں۔ ذہنی صحت کے لیے وقفے، ورزش اور مناسب نیند لازمی ہیں۔ نتیجہ حوصلہ شکنی عام مگر خطرناک مسئلہ ہے جس کے منفی اثرات فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر وسیع معاشرتی سطح تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مقابلہ صرف فردی کوششوں سے ممکن نہیں بلکہ تعلیمی اداروں، کام کی جگہوں اور معاشرتی پالیسیوں کی مدد درکار ہے۔ مثبت فیڈ بیک، مساوی مواقع اور ذہنی صحت کی دیکھ بھال کو فروغ دے کر ہم نہ صرف افراد کا حوصلہ بحال کر سکتے ہیں بلکہ معاشرتی فلاح و بہبود کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ ویڈیو آؤٹ لائن یوٹیوب ڈسکرپشن بھی تیار کر دوں گا۔ مزید کسی مخصوص انداز مخاطب مثلاً طلباء، اساتذہ، مینیجرز کے لیے ترمیم چاہیے تو بتائیں۔